دوسری ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ ارشاد پھنس چکا ہے اس خبیث شیطانی لڑکی کے جال میں جو اس کو مارنا چاہ رہی ہے۔ سعدیہ نے ڈھونڈ لیا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو، لیکن ارشاد ان کو کہیں نہیں مل رہا ہے۔ وہ کس طرح پہنچ پائیں گے اپنے والد صاحب کے پاس؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کون ان کی مدد کے لیے آئے گا؟ کون ہے وہ شیطانی خبیث لڑکی؟ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ مولوی عبد الرحمن کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور وہ تسبیح کے دانوں پر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنی جھوپڑی نما گھر میں موجود تھے اور ان کے چہرے پر پریشانی کے گہرے آثار موجود تھے۔ تبھی ان کی جھوپڑی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مولوی صاحب اٹھے اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ان کا شاگرد محمود کھڑا پریشانی کے عالم میں ہاتھ مل رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ ہاں بابا، پھر سے ایک دل دلا دینے والا حادثہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ایک ٹرک ڈرائیور یہاں سے گزر رہا تھا کہ اسے جنگل میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ٹرک روکا اور رونے کی آواز کے بارے میں پتہ کیا تو ایک آسیبی مخلوق اسے نظر آئی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اس مخلوق نے اسے زندہ نگل لیا۔ میں کچھ نہیں کر پایا بابا۔ اس جنگل میں آسیبی واقعات اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب آپ کی تسبیحات کا بھی کوئی اثر نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے بیٹا، آسیبی مخلوقات یعنی جنات کے یہاں جمع ہونے کی کیا وجہ ہے۔ یہ کوئی مسلمان جنات نہیں ہے بلکہ شیطان سے ان کا تعلق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جو یہ سب کر رہی ہے شیطانی لڑکی ہے۔ تمام آسیبی اور جناتی گروہ کے لوگ اس لڑکی کے چیلے یعنی شاگرد ہیں اور وہی انہیں اس جنگل میں آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ وہ تمام شیطانوں کی رانی ہے۔ وہ بھولے بھالے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں اپنے گھر لے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے گھر سے آج تک کوئی بھی لڑکا صحیح سلامت واپس نہیں آیا۔ اب میرے یہاں بیٹھ کر کیے گئے اذکار بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس نے شیطانی طاقت بڑے شیطان سے لے رکھی ہے۔ وہ میرے ہر کلام کا الٹا اثر کر دیتی ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ بولتے چلے گئے، کیا آپ اس لڑکی سے ہار مان چکے ہیں بابا؟ محمود نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کا کلام کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ وہ ایک نہ ایک دن ضرور میرے قبضے میں آئے گی۔ بہت بری موت مرے گی وہ دن کب آئے گا بابا؟ آخر اس جنگل میں کتنی اموات ہو گئی ہیں۔ بے چینی کے عالم میں بول رہا تھا وہ دن اس وقت ہی آئے گا جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا نیک بندہ اس جنگل میں رخ کرے گا جس کے پاس ایمانی طاقت ہوگی۔ وہ اپنی ایمانی طاقت سے اس لڑکی کے شر کو کچل کر رکھ دے گا۔ مجھے بس کسی ایسے نیک بندے کی تلاش ہے، پھر میرا ہر کلام اس لڑکی کے سر پر ہتھوڑے کی مانند پڑے گا اور اس کی ساری شیطانی طاقت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولتے چلے گئے۔ محمود انہیں ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اسے صرف دلاسا دے رہے ہوں اور ان کی بات میں کوئی سچائی نہ ہو، لیکن مولوی عبد الرحمن کے چہرے پر یقین کی بجلیاں نظر آ رہی تھی۔ اب یہاں پر شہزاد اور شہباز احمد حیرت کے عالم میں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی جا رہی تھیں۔ اس وقت شہباز احمد کھوئے کھوئے انداز میں پچھلی سیٹ کو دیکھ رہے تھے جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور حسرت صاف دکھائی دے سکتی تھی۔ شہزاد بھی پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک گاڑی پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ شہزاد نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس گاڑی کو ہاتھ دے کر روکنے کا اشارہ کیا اور مدد کے لیے پکارا، سنیے سنیے، ادھر گاڑی روک دیجیے، اس نے چلا کر کہا۔ سڑک کے درمیان میں وہ آ کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی کے ڈرائیور نے حیران ہوتے ہوئے گاڑی روک دی۔ احمد صاحب بھی حواس بحال کرتے ہوئے جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ دونوں گاڑی کی کھڑکی کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھنے لگے۔ کوئی نوجوان تھا وہ۔ ہماری مدد کیجیے، ہم اس جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ ہم اپنے ریسٹ ہاؤس کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ اب ہم یہاں خوار ہو رہے ہیں۔ اس لڑکی سے ملنے والی بات وہ درمیان میں گول کر گئے۔ ٹھیک ہے، آپ میری گاڑی میں سوار ہو جائیے، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، مسکرا کر اس نوجوان نے کہا۔ شہزاد اور شہباز خوش ہو گئے۔ اگلی سیٹ کی طرف بیٹھے شہباز احمد اور شہزاد پچھلی سیٹ کی طرف، لیکن تبھی نوجوان کی سرد آواز نے انہیں چونکا دیا۔ آپ دونوں پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھے، اگلی سیٹ کسی اور کے لیے مخصوص ہے۔ نہایت سرد لہجہ تھا اور عجیب سا پراسرار سا۔ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ پھر شہزاد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، لگتا ہے کوئی لڑکی وغیرہ بیٹھے گی۔ پھر وہ دونوں اگلے ہی لمحے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نوجوان سڑک پر پوری رفتار سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ باہر سے ہوا کے گرم گرم تھپیڑے ان کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور سورج کا رخ
غروब होने के सिमत हो चुका था। अलबत्ता अब भी सूरज की तपिश ने उनका चेहरा पसीने से भर दिया था। वो सुबह के वक्त अपने घर से निकले थे और अब दोपहर और शाम के दरमियान का वक्त हो चला था। उन्हें अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। उन्होंने फैसला किया था कि रेस्ट हाउस पहुंचकर वहां पास ही में मौजूद पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे और पुलिस के कुछ एहलकारों को साथ लेकर खुद भी उस सिम बच्चों की तलाश में निकल खड़े होंगे। शहजाद और शहबाज सोचों में गुम ख्यालों में डूबे हुए थे कि तभी शहजाद की नजर रेस के पैडल की तरफ गई। दूसरे ही लम्हे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उस नौजवान शख्स का तो पाँव ही नहीं था और रेस का पैडल खुद ब खुद दबा हुआ था। शहजाद हैरत के आलम में ये मंजर देखने लगा। फिर उसने अहमद को गाड़ी के पैडल की तरफ देखने का इशारा किया। उन्होंने हैरान होकर जब नजरें उठाई और फिर उनका चेहरा भी दूध की तरह सफेद हो गया। क्या हुआ आप लोगों को? यही सोच रहे हैं कि मेरे पाँव नहीं हैं? फिर ये गाड़ी खुद ब खुद कैसे चल रही है? नौजवान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी। उसकी बात सुनकर उन्हें अपने जिस्मों से जान निकलती हुई महसूस हुई। गाड़ी रोको, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। उन्होंने गरज कर कहा। मैं गाड़ी कैसे रोकूं? मेरे तो पैर ही नहीं हैं और वैसे भी आप लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? रूह? मैं खुद एक हवा का झोंका हूँ, आपके हाथ नहीं आऊंगा। मेरी तरफ हाथ तो बढ़ाकर दिखाओ, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे शहजाद को भी ताव आ गया। उसने नौजवान की गर्दन की तरफ हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए, उसके हाथ उस पर से ऐसे गुजर गए जैसे हवा में किसी ने हाथ लहराए हों। दर हकीकत शहजाद का हाथ उस नौजवान की गर्दन के आर पार होकर सीट से टकराया हुआ था। शहजाद ने महसूस कर लिया कि उस नौजवान शख्स की गाड़ी में कोई वजूद है ही नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ उसकी परछाई बैठी हुई गाड़ी चला रही है। ये हकीकत जानकर शहजाद के चेहरे का रंग जर्द हो गया। शहजाद आंखें फाड़े हुए उस अजीबोगरीब मखलूक को देख रहा था जिसके दोनों पैर नहीं थे और वो खुद हवा का झोंका ही थी। अब तो उन दोनों के हाथों के तोते उड़ गए। परेशानी और खौफ के पसीने में डूबे हुए थे वो, लेकिन पसीने के बावजूद उनके बदन कांप रहे थे। उस वक्त उनकी जिंदगी एक गैर इंसानी आसेबी मखलूक के हाथ में थी और उनकी गाड़ी जंगल की सुनसान सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। तभी शहबाज अहमद ने अपनी हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर कहा, शहजाद गाड़ी का दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। पूरी कुव्वत से शहजाद ने दरवाजा खोला। होश में आ चुका था। दरवाजा खुलते ही दोनों ने बाहर छलांग लगा ली। छलांग लगाते ही सड़क की सख्त जमीन से टकरा गए। उनके मुंह से तकलीफ दे आवाज निकली, लेकिन वो चीख उस कर्ब से ज्यादा थी जो उस गाड़ी में बैठते हुए उनको हो रहा था। वो सड़क पर गिरते ही खुद को फौरन संभाल नहीं सके, क्योंकि जिस गाड़ी से उन्हें छलांग लगानी थी उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसकी खिड़की से वो शैतानी मखलूक हंसती हुई जा रही थी कि अब तो गाड़ी से निकल गए हो, पर नीचे देखो, खाई है उस तरफ। सच में वो एक गहरी खाई की तरफ जा रहे थे। खुद को कैसे काबू करते? उनको तो अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। अचानक उनको होश आया। एक बार फिर उन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। हाथ थामते ही उनको जबरदस्त झटका लगा और उन्होंने एक दूसरे के जिस्मों को मजबूती से पकड़ लिया। वहीं एक दरख्त भी था जिसको शहबाज अहमद ने पूरी तरह से जकड़ लिया था, इसीलिए वो दोनों खाई में गिरने से बच गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त तक वो यूं ही जमीन पर पड़े रहे, हाँफते कांपते रहे। सच में अल्लाह ताला ने गैबी मदद भेजी थी, जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी बख्श दी थी। वो शैतानी मखलूक वहां से जा चुकी थी। अब वो दोनों उठकर सड़क के दरमियान में आ गए। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। अब कौन हमारी मदद करेगा? इस जंगल में तो एक से बढ़कर एक आसेबी खतरनाक मखलूकात से सामना हो रहा है। पहले वो जिन्नाती लड़की और अब ये नौजवान आदमी जो दर हकीकत एक परछाई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम सब इस वक्त इस खौफनाक जंगल में कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं। शहजाद की बातों में गहरी मायूसी थी। अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो शहजाद। मुझे यकीन है कि जिस तरह हम सही सलामत यहाँ आए हैं, जिस तरह उस शैतानी मखलूक से हम बचे हैं, तो उम्मीद रखो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई मदद जरूर भेज देगा। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें जबरदस्त झटका लगा। उन आवाजों ने जैसे उनके अफसुर्दा चेहरों पर जोश की एक नई रूह फूंक दी। ये आवाज उनके बच्चों की थी जो कि नजदीक से आ रही थी। वो दीवाना वार उस आवाज के ताक़ुब में दौड़े। कुछ ही पल में उन्होंने इरफान, अदनान, इमरान और सादिया को जंगल के दूसरे किनारे पर खड़ा पाया। वो दोनों बेताबाना अंदाज में दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और उनको भेंचकर गले से लगा लिया। बच्चे हैरानगी से बाप और उनके उस मुलाजिम को देख रहे थे। बहुत खुशी हुई एक दूसरे से मिलकर। अल्लाह ताला ने उन्हें मिला दिया। इसका मतलब आगे भी आसानियां हो जाएंगी।
लेकिन एकदम सादिया ने कहा, अब्बा जान, हम तो आपसे मिल गए हैं, पर हमारा भाई इरशाद हमारे साथ नहीं है, हमारी आंखों के सामने। सादिया बस इतना ही कह पाई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों ने माहौल को और रंजीदा कर दिया था। वो अपने भाई को अपनी आंखों के सामने जाते देख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाई। रोते हुए उसकी हिचकियां बन गई। वो कैसे बताती और कैसे कहती। उतने में इरफान बोल पड़ा। किस तरह इरशाद और उनके दरमियान धूम की दीवार रुकावट बन गई थी और किस तरह इरशाद खला में बातें करता हुआ उन सबकी नजरों के सामने से गायब हो गया। तफसील सुनने के बाद उनके माथे पर फिक्रमंदी की शिकनें नमूदार हो गई। अब हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि हम रेस्ट हाउस पहुंचकर वहां से पुलिस की मदद हासिल करें और फिर दोबारा इरशाद की तलाश में यहाँ आए। उन सब ने सर हिला दिया। दूसरे ही लम्हे वो सब जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ रवाना हो गए। ये वही रास्ता था जहाँ कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई थी। उसी रास्ते पर चलते हुए वो सब बीच सड़क पर आ गए। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा था। सूरज गुरूब हो रहा था और तारीकी बढ़ती जा रही थी। इन हालात में वो एकदम से चौंक गए। क्या हुआ अब्बाजान? मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है। हमें किसी गाड़ी को रोककर लिफ्ट लेने के बजाय आसपास किसी घर को तलाश करना चाहिए। फिर उस घर के मालिक से दरख्वास्त करके उस घर में नमाज पढ़ लेंगे। ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। अभी वो यही सोच रहे थे कि हमें किस सिम जाना चाहिए कि किसी का घर मिल जाए। उसी वक्त इरफान चिल्ला उठा, अब्बाजान, सादिया कहाँ गई? सबने चारों तरफ पलट कर देखा। वहां पर सादिया तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं थी। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। इतने कम वक्त में कहाँ जा सकती है? हमारे दरमियान खड़ी थी। ये जंगल आसिबी मखलूकात से भरा हुआ है। मुझे लग रहा है मेरी बेटी को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है। उसके अचानक गायब हो जाने पर उनके जिस्मों में सनसनी की एक लहर दौड़ गई और सबके चेहरों का रंग बिल्कुल जर्द हो गया। सादिया उन सबको छोड़कर जंगल की तरफ निकल आई थी। जब उसने अपने अब्बाजान शहबाज अहमद की ये बात सुनी कि वो पहले रेस्ट हाउस जाकर पुलिस की मदद लेंगे, फिर यहाँ वापस आकर इरशाद को तलाश करेंगे, तो वो परेशान हो गई। इतनी देर? अब अपने भाई इरशाद को खतरे में छोड़कर खुद रेस्ट हाउस जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा वो दूसरों के साथ जाने के बजाय अपने भाई की तलाश में जंगल की तरफ आ गई। उस जगह पहुंचकर वो आसपास को देखने लगी। यहाँ से जंगल तो खत्म हो रहा है, लेकिन एक वीरान पथरीला रास्ता शुरू हो रहा था। सादिया ने एक पल भी देर नहीं की और उस रास्ते पर कदम जमा दिए। सूरज गुरूब हो चुका था। सादिया काफी थकान महसूस कर रही थी। इस आलम में उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपने भाई इरशाद की। अपने भाइयों के लिए वो जान भी दे सकती थी और इरशाद तो उसका सबसे लाडला भाई था। अगरचे उससे उम्र में 1 साल बड़ा था, लेकिन वो उसको छोटे भाइयों की तरह अजीज रखती थी, क्योंकि बचपन से ही वो बहुत ज्यादा शरारती था। यही वजह थी कि सादिया इरशाद को तमाम भाइयों से बढ़कर प्यार करती थी। काफी देर तक वो पथरीले रास्ते पर चलती रही। उस रास्ते पर गहरी तारीकी में चलना भी काफी दुश्वार था, लेकिन वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। आखिर अल्लाह अल्लाह करके वो रास्ता खत्म हो गया। फिर अचानक उसे एक बहुत पुराना सा बंगला नजर आया। उस पुराने कदीम बंगले को देखकर उसकी सारी थकावट दूर हो गई। दिल में उम्मीद जागी, जोश से वो भर गई। अब उसे इरशाद तक रसाई ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही थी। उसने बंगले के दरवाजे को खुला हुआ पाया। ये देखकर उसे यकीन आ गया कि अल्लाह भी उसके साथ है। अब उसने देर करना मुनासिब नहीं समझा और बंगले के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक उजड़ा हुआ बाग था और थोड़े से फासले पर बंगले का अंदरूनी दरवाजा था जो अंदर से बंद था। सादिया ने वो वीरान बाग अबूर किया और दरवाजे के पास पहुंच गई। दरवाजे के साथ ही घंटी का बटन लगा हुआ था। ये बंगला जितना पुराना था, घंटी भी उतनी ही पुरानी मालूम होती थी। जैसे ही उसने घंटी का बटन दबाया, दरवाजा खुल गया। दरवाजे से एक लड़की का चेहरा बाहर आया। उस लड़की के चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट नाच रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सादिया को अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। मारे खौफ के उसका हलक खुश्क होने लगा। लड़की ने उसकी हालत देखकर उसे खौफनाक अंदाज में घूरा। क्या बात है? उस लड़की ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। मेरा भाई कहाँ है? सादिया के मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली। उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके बदन का सारा खून खुश्क हो गया है। यहाँ वो लड़की उसे खूनख्वार निगाहों से घूर रही थी। शहबाज अहमद, शहजाद इरफान, इमरान और अदनान के साथ सड़क पर खड़े परेशानी के आलम में सादिया को ढूंढ रहे थे। कुछ वक्त पहले सादिया उनके साथ थी, लेकिन अब अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई थी। ऐसे में इमरान कहने लगा, मैं उस वक्त को कोस रहा हूँ जब हमने रेस्ट हाउस के सफर का फैसला किया। सबसे पहले इरशाद इस जंगल में हमारी आंखों के सामने गायब हो गया और अब हमारी बहन सादिया न जाने कहाँ चली गई है।
वक्त को कोसने से कुछ नहीं होगा बेटा, ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। हमसे ज़रूर कोई ऐसी गलती हो गई है जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है। अब मैं सिवाय मगरिब की नमाज पढ़ने के और कोई काम नहीं करूँगा, उन्होंने अटल और सख्त लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। कुछ दूर नहीं गई थी नजरें कि एक झोपड़ी नजर आई। रोशनी फैली हुई थी उसके अंदर। उनका चेहरा जज्बा ईमानी से भर गया और फिर वो झोपड़ी की सिम कदम बढ़ाने लगे। उन सब ने भी अपने वालिद साहब का साथ दिया। कुछ देर तक चलने के बाद वो झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंच गए। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत थी। उस नेक सिफत इंसान ने जैसे ही उनको देखा, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके लबों पर रक्सा हो गई। उन्होंने गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया, जैसे वो उन सबको बरसों से जानते हो या कोई ऐसी बात पता चल गई हो उनके बारे में। उस नेक सिफत इंसान ने धीमे अंदाज से मुस्कुराकर कहा, मैं मौलवी अब्दुल रहमान हूँ, मैं शहबाज अहमद हूँ, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे असिस्टेंट शहजाद हैं। शहबाज अहमद ने उन सबका तारुफ करवाया और कहा कि हमें नमाज पढ़नी है, इसी वजह से हम तलाश कर रहे थे कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम नमाज अदा कर सकें। अब आप हमें जगह बता दीजिए ताकि हम नमाज पढ़ लें। उन्होंने उनको जगह बता दी और वो सब नमाज के लिए खड़े हो गए। जब वो नमाज अदा कर चुके, अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने दोनों बच्चों की सलामती मांगी, तो मौलवी अब्दुल रहमान उनको बहुत गौर से देख रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद और दुआ मांगने के बाद उनके पास आकर उन्होंने अपनी झोली फैला दी। आप मुझे अल्लाह वाले लगते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाल दे। कैसी परेशानी, आप मुझे तफसील से बताइए, नरम लहजे में मौलवी साहब बोले। मौलवी साहब, हम आज सुबह अपने रेस्ट हाउस के लिए निकले थे। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हम सब इस जंगल में फंस गए। मैं और मेरा असिस्टेंट शहजाद गाड़ी से नीचे उतरे ताकि किसी से मदद मांगकर गाड़ी ठीक करा सकें। अभी हम नीचे उतरे ही थे कि हमें एक लड़की नजर आई। उसने कहा कि उसके माँ बाप खो गए हैं और उसने हमसे उनको तलाश करने के लिए मदद मांगी। हम दोनों उसके पीछे चल पड़े। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि वो लड़की रुक गई। उसने हमसे कहा अब उसे हमारी मदद नहीं चाहिए, हम वापस चले जाएं। हम हैरान होकर उस लड़की को देख ही रहे थे कि वो गायब हो गई। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि वो बोल पड़े। ओह! परेशानी के आलम में उनके मुंह से अल्फाज निकले थे। फिर जब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ आए तो मेरे 5 बच्चे गाड़ी के अंदर नहीं थे, न जाने वो कहाँ चले गए थे। बाद में मुझे इरफान ने बताया कि ये लोग गाड़ी से बाहर निकल आए थे और बाहर निकलते ही बेहोश हो गए थे। बेहोश होने से पहले उन्होंने किसी लड़की की आवाज़ सुनी थी, हंस रही थी और कह रही थी, अब तुम सब कभी नहीं मिल सकोगे। उनकी बात सुनकर मौलवी साहब कुछ देर के लिए मुराकबे में चले गए। फिर उनको तमाम मंजर अपनी आंखों के सामने नजर आया। बेचैन होकर कहने लगे, आपका बेटा इरशाद बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसे वो लड़की ले गई है कि जिसके घर आज तक जो भी लड़का गया, उस लड़के का चेहरा दुनिया फिर कभी देख नहीं सकी। आप भी अपने बेटे का चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देख सकेंगे। इस बार मौलवी अब्दुल रहमान का लहजा निहायत अजीब सा था। उन्होंने इतने यकीन से ये बात कही कि उनको लगा कि अब वो अपने बेटे को कभी नहीं देख सकेंगे। और सादिया, उसकी आप फिक्र न करें, उसके चेहरे पर मैंने कुव्वत ईमानी देखी है। उसका वो लड़की कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर आपकी बेटी भी वहीं गई है जहाँ पर आपका बेटा है। यहाँ पर इरशाद की आंख खुली तो वो उस लड़की के कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था। वो बदहवासी के आलम में उठकर बैठ गया। दिमाग पर जोर देने पर उसे बेहोश होने से पहले के वाकयात याद आने लगे। किस तरह उसने उस लड़की से नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी और अभी वो नमाज पढ़ने जा ही रहा था कि अचानक वो बेहोश हो गया। आखिर में बेहोश कैसे हो गया? ये लड़की जरूर कोई शातिर खिलाड़ी है। इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है और मैं भी इसकी कशिश की वजह से इसके साथ आ गया। मुझे तो वापस जंगल में जाकर अब्बा जान और अपने भाइयों और अपनी बहन को तलाश करना था। मुझे अभी जाना होगा। वो बड़बड़ाया और फिर उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो लड़की मुझे दोबारा आकर नमाज से रोके, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। मुझे लग रहा है वो कोई शैतान है जो मुझे नमाज पढ़ने से रोक रही है। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, अगला लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था। धक से रह गया। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। खौफ से उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। कमरे के अंदर लाइन से 12 लाशें रस्सी से लटकी हुई थीं। उन लाशों में सारे के सारे नौजवान लड़के थे जिनकी उम्र इरशाद की उम्र के बराबर यानी 18 साल ही थी। उन लाशों को देखकर इरशाद खौफ के पसीने में नहा गया। उसकी जबान साकित हो गई, सांस गले में अटक रही थी। जिन रस्सियों पर
वो 12 लाशें लटकी हुई थी। उन रस्सियों के साथ एक रस्सी खाली भी लटकी हुई थी, जो कि यकीनन इरशाद का इंतजार कर रही थी। उस रस्सी को देखकर इरशाद को अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आने लगी। उसका चेहरा मारे खौफ के जर्द पड़ने लगा। सादिया उस वक्त उस लड़की के सामने खड़ी थी। वो लड़की उसे खा जाने वाले अंदाज में घूर रही थी। कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है मेरा भाई? मुझे पता है मेरा भाई तुम्हारे पास ही है। वो लड़की उसे घूरे जा रही थी। तो तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाती हूँ। लड़की के चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट थी। सादिया कांप गई। दूसरे ही लम्हे उस लड़की ने सादिया का हाथ पकड़ा और उसे बिजली की सी तेजी से दरवाजे के अंदर ले गई और फिर सादिया को शदीद सर्दी का एहसास होने लगा। वो लड़की सादिया का हाथ मजबूती से पकड़े उसे घर के हॉल में दाखिल होते हुए ऊपर सीढ़ियों के पास ले आई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। सादिया ने महसूस कर लिया था कि उस लड़की की गिरफ्त नाकाबिले हद तक मजबूत है। वो किसी सूरत भी उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती, लिहाजा उसने लड़की के साथ चलने में ही आफियत जानी। वो लड़की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे बरामदे में ले आई और फिर सबसे पहले वाले कमरे का रुख किया। तभी वो दोनों चौंक उठे। उन्हें इरशाद की चीख सुनाई दी थी और आवाज जिस कमरे से आई थी उस कमरे पर नजर पड़ते ही उस शैतानी लड़की की आंखों में उलझन दौड़ गई। फिर वो बिना देर किए सादिया को घसीटती हुई उस 5वें कमरे में दाखिल हो गई। ये वही कमरा था जहाँ से इरशाद के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। कमरे में दाखिल होते ही सादिया की भी चीख निकल गई, क्योंकि जो खतरनाक भयानक मंजर वो देख रही थी वो तो जान निकाल देने के लिए काफी था, रूह को झंझोर देने के लिए काफी था। कमरे में 12 नौजवान लड़कों की लाशें ऐसे लटक रही थी रस्सियों से कि जैसे लग रहा था कितनी दर्दनाक मौत इनको दी गई है। उनकी लाशों से खून बह रहा था और उनके चेहरे दूध की तरह सफेद पड़ चुके थे। इरशाद पर नजर पड़ते ही सादिया के चेहरे पर खुशी आ गई। उसको अपने अंदर जान आती हुई महसूस हुई कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और अपने भाई तक पहुंच गई है। इरशाद ने भी उसे देखा तो खुशी में नहा गया। तो तुम भी यहाँ पहुंच गई, ये लड़की तुम्हें ले आई? इरशाद ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। नहीं, मैं तुम्हें तलाश करते हुए खुद यहाँ आई हूँ। अब तुम दोनों अपने ऊपर पहुँचने की तैयारी करो, समझ गए? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो लड़की गुर्रा कर बोली, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को मजीद वक्त नहीं दे सकती। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ए लड़की, बात सुनो, सबसे पहले मौत तुम्हारी होगी। उस शैतानी लड़की ने सादिया की तरफ खूनख्वार नजरों से देखा। दूसरे ही लम्हे उसके दोनों हाथ लंबे होते जा रहे थे। काफी दूर वो खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ लंबे होते होते सादिया के गले की तरफ बढ़े। इरशाद उसकी नीयत समझकर सटपटा गया। सादिया भी मारे खौफ के पीछे हटी। वो लड़की सादिया की तरफ बेरहमी के साथ अपने हाथ बढ़ा रही थी। इरशाद उस लड़की को जालिमाना अंदाज में सादिया की तरफ बढ़ते हुए देखकर तड़प उठा। अपनी बहन को वो मौत के मुंह में कैसे जाने दे सकता था। इरशाद ने सादिया को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कदम जमीन से चिपक कर रह गए हैं। उसने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी तरफ वो शैतानी लड़की सादिया का गला घोटने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती जा रही थी। उस वक्त उसके खबीस शैतानी चेहरे पर एक अजीब सी पुरस्कार सी मुस्कुराहट नाच रही थी कि एक मौत और होने वाली है मेरे हाथों। यहाँ पर सादिया की जान निकलती जा रही थी। कदम कदम पर दिल को लर्जा देने वाली और रूह को झंझोर देने वाली ये कहानी अभी बाकी है। क्या उस शैतानी लड़की ने सादिया को मार दिया? इरशाद अपनी बहन को बचा पाया? किस तरह वो पूरा खानदान उस आसेवी मखलूक शैतानी मखलूक से बच पाएगा? क्या मौलवी अब्दुल रहमान उनकी मदद करेंगे? जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखिएगा।